So our next topic is force on a closed circuit. अच्छा, what is a closed circuit? What is a closed circuit? Switching? Switch is on. अच्छा, switch is on. Okay. So alright, so this is your battery. ठीक है, सही बैटरी. Is it a DC or AC? DC source. Okay, this is some resistance. Okay, okay. और ये क्या है? Connecting wires. ठीक है, which are connecting every element in the circuit. ठीक है. ओके, नाउ स्विच क्या है इस केस में? ओपन है, राइट? सो इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? एट दिस पॉइंट इन दिस सिनेरियो द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, ओके. अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल क्लोज द स्विच. हम कैसे भी दिखा सकते हैं, यू कैन शो लाइक दिस और यू कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट. और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया? क्लोज सर्किट. इट डजंट मैटर. कुछ कुछ जगह पे स्विच ऐसे दिखाया जाता है, कुछ जगह पे स्विच. ओके, वंस आई क्लोज द स्विच, क्या हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अच्छा, if the current is flowing through the circuit, ठीक है, and let us say that this is the given direction for the current, which is let us say is I. Okay, we will get to the representation part later. ठीक है, तो अभी मुझे खाली इतना बताओ कि as long as the current is flowing through the circuit, will there be a magnetic field around the conductor? As long as the current is flowing through the circuit, there is bound to be क्या? The magnetic field flowing or is involved around the conductor. ठीक है, क्या तक समझ में आ रहा है? ओके. What will be the direction of magnetic field? Magnetic field है ना, उसका डायरेक्शन क्या है? क्या वो एक ही जगह पे है? क्या हो? उसे क्या कहते हैं? ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. What we are going to do is we are going to imply right hand thumb rule. ठीक है, अच्छा, you implied right hand thumb rule. ठीक है, you are like नहीं, मेरे को right hand thumb rule imply करना है और ये करने वाला. ठीक है, and you did it and you found out the magnetic field which is across the closed circuit. कितना हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड? कितना हो सकता है?
Depends on current. Yes, of course it depends on current. और क्या क्या चीज़ you have written, see almost everything, you have already written almost everything. आपने लिखा हुआ है. हमारे जो पीछे जितने भी हमने टॉपिक्स किए ना, in all the topics the answers are there. All we are going to do is we are going to just collect that thing, ठीक है, and we are going to just represent it other way. ठीक है, ओके. एक काम करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो. Just let me see the representation. So representation दिया कि इन लोगों ने तो नहीं, ये खाली कैपिटल आई यूज किया है. Instead of small I, they are using this as a capital. और कुछ है नहीं. हो गया. ओके, राइट डाउन द स्टेटमेंट. जस्ट नो दिस कि आपको पता है इसका आंसर क्या है. ठीक है, दिस इज नथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी डिड एक्चुअली इन द लास्ट लेक्चर्स. ठीक है, हमने जो पिछले लेक्चर में किया ना उससे ये अलग नहीं है. फिलहाल आपको पिछले वाले लेक्चर याद नहीं है. राइट आउट. द मैग्नेटिक फोर्स, that is implied on the conductor. The magnetic force is implied on the conductor in a closed circuit, as shown in the figure above. ठीक है, comma for a very small infinitesimal small ऐसे लिखना चाहिए. चलो कोई नहीं, आपने स्मॉल लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखो इनफाइनेटेसिमल. Infinitesimal bracket complete. Length of the conductor DL can be given by DIL is something. ओके, इट वाज DIL है ना. अभी किसी ने बताया था, मैंने पूछा था, DIL इज द आंसर. ओके,
but is it for the closed conductor or is it for the general any conductor? ये any conductor के लिए है ना. This is not for the closed conductor. If the closed conductor is involved, see, closed conductor मतलब a conductor in a closed circuit. If a conductor in a closed circuit is involved, this integration is going to be assessed in certain limits. Did you get my point? See, we are integrating something. अगर मैंने खाली इंटीग्रेशन लिख दिया, आपका इंटीग्रेशन हुआ है? ओके. तो इंटीग्रेशन में आपको ये बात पता होगी कि अगर मैंने खाली इंटीग्रेशन लिख दिया, दिस कैन मीन दिस इज एन ओपन इंटीग्रेशन, है ना. आप कहीं से भी कहीं तक कर सकते हो. यू कैन गो फ्रॉम लेट अस से 0 to infinity. यू कैन गो, है ना. लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन is not a generalized integration, it is constricted integration. Second last bench. What are you looking for? क्या देखो? उसकी किताब में कुछ है? आपकी किताब में कुछ है? And don't do like this. You will sleep. ये ऐसे किया ना सो जाओगे 100%. ऐसा 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 नहीं. So मैं भी करता हूँ. If I want to show a constricted integration, what I am going to do? इसका क्या मतलब है? It is constricted. इसका क्या मतलब है? It is constricted. There are limitations to the integration. There are limitations to the integration, right? Okay. तो इसमें क्या बदल करेंगे अपन? हाँ. Closed loop है ना, it is going to be constricted. It's not like the length is infinite. ऐसा ये कुछ नहीं. सर्किट में लेंथ को थोड़ी है infinite. It's not infinite. So yeah, this is your formula. This is it. This is everything. उसको डब्बे में डालो. अभी एक स्टेटमेंट लिखो. ये लिख लिया आपने? Just write down one statement. Here, comma, the sum of the vector for the given circuit. Here the sum of the vector for the given circuit is considered for the closed circuit as 0. ठीक है. अगर वेक्टर सम ये आपका 0 हुआ, ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? For the given circuit, it is going to be 0. Therefore, Fm is equal to 0. Instead of considering this as a scalar, they have considered it as a vector quantity. As long as you are considering this as a vector quantity, there is going to be a क्या?
as long as you are going to consider this as a vector quantity, what is going to happen? You have to consider the directions, है ना? And as long as the direction is considered, then there is going to be involvement for the signs. और जब आप sum करते हो of all the values, the value should always be equal to 0. Why? Because it is a closed circuit. Because it is a closed circuit. If it would have been an open circuit, then the value would have been justified. Because formula बहुत सारे हैं. We could have justified the formula, but as long as it is going to be a closed circuit, this value is going to be 0. Okay? Okay. अच्छा, ओपन सर्किट मतलब कैसा? See, every circuit looks like this. आप बोलोगे यार सर ये तो सारे के सारे सर्किट ऐसे ही दिखते हैं, तो सारे के सारे मैग्नेटिक सबके मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या? Yes? No? Let us take an example. Okay, ये तो बहुत ही छोटा सर्किट है. We will take a very big example. Let us say let us say this is an AC circuit. ठीक है? और ये क्या है? This is an alternator. या फिर generator in general. Okay, this is a generator. The generator is creating energy. ठीक है? Now the energy is transmitted through a transmission lines. ठीक है? और वो कहाँ पर जाती है? It goes to the load point. So this is your load section. I am not concerned with generator and I am also not concerned with the load section. ठीक है? थोड़ी देर के लिए हम ये energized wire consider करेंगे. चलेगा? और just take a look at the energized wire. ये energized wire मतलब कौन सी? जो बाहर आप देखते हो ना, ऐसी लंबी लंबी तार जाती है. तो ये वो वायर है. ठीक है? Now try to focus for few minutes. This is an energized wire, correct? This is an energized wire, correct? Okay. If this is an energized wire, is there going to be a magnetic flux around it? Now, are you going to consider this as 0? क्या आप इस केस में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कंसिडर करोगे? क्यों? Field lines are there, traveling through area. Field lines are traveling through area. See, in a very big aspect, yes. In a very major aspect, yes. This is a closed circuit. The first thing. देख, अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो क्या करंट ट्रांसफर होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगी? नहीं. इसका मतलब क्या है? इट इज अ क्लोज सर्किट. यस, इट इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट. दिस इज अ क्लोज सर्किट. बट we are not concerned with the big aspect, na? We are bound to consider a certain part of the entire system, right? So while we are studying, we don't consider the circuit as little as this, okay? Or we don't consider the circuit is closed at all. What do? Is we consider a small part of the system and we study that little part, and then what do? We integrate directly. ठीक है? ओके. खाली इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप किसी भी छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, अगर आप सिस्टम में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर दैट पर्टिकुलर पार्ट, when you integrate it, you define the integration. अभी इसमें हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज अ क्लोज सर्किट. अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, कैन आई से इट इज अ क्लोज सर्किट? क्यों? बिकॉज दिस इज completely different system. This is completely different system, and the transmission lines are completely different system.
दे आर बिल्डिंग देयर ओन सिस्टम, यू नो, बाय देयर ओन। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, वी कंसिडर द सिस्टमैटिक स्टडी फॉर यू नो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ठीक है। तो वो हम उस टाइम पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास छोटा सर्किट होगा, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस बिग यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना। Now tell me, what will be the magnetic force for a straight line conductor carrying the current? There is a different formula, ना, है कि नहीं? Are you understanding the concept? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं खाली इतना ही पार्ट लेता हूँ तो मैं ये फॉर्मूला इम्प्लाई नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पर। मैं वहाँ पर क्या इम्प्लाई कर रहा हूँ? आई एम इम्प्लाइंग कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर, है ना, है कि नहीं? अगर ये वायर ऐसी नहीं होती, ये वायर ऐसी ऐसी, and this would have been an energized bar. Now, if I take a little bit of this and little bit of this, इसके ऊपर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता? आर्बिट्ररी energized bar, है ना? Are you getting the idea? But when I take the entire circuit into mind, it changes. It literally changes. समझ रहे हो? जिनको नींद नहीं आ रही उनके लिए, जिनको नींद आ रही है वो जाके मुंह धो के आ सकते हैं। हाँ? हाँ? This is the overall total magnetic field of the whole. क्या कर रहे हो तुम दोनों का कुछ चल रहा है? नहीं क्या? 100% चल रहा है। वो तुम्हारे साइड वालों को पता है क्या चल रहा है? वो बताएंगे नहीं यार, यू नो, equally induced people. That was the magnetic field. हमको उतना पता ही नहीं मैग्नेटिक, है ना। नेक्स्ट पार्ट लिखिए, चलिए। टॉर्क ऑन अ करंट लू। नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट लू। टॉर्क ऑन अ करंट लू। Should I rub this? Did you get the point? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? ओके। अगर आपको नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? You don't have to go blank all the time, ठीक है? और या फिर sleepy for that matter. I know physics थोड़ा बोरिंग होता है। What is torque? Impact of a couple. Torque is impact of a couple. And what is a couple? अभी क्या पूछने वाली बात है? What is it? Opposite tangential. Opposite Tangential. opposite tangential. Equal and opposite tangential. क्या? Equal and opposite tangential. अच्छा, see,
लेट अस से दिस इज सर्टन रॉड, ठीक है, और ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, और लेट अस से एट इक्वल डिस्टेंस x, हमने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर इम्प्लॉयड, ठीक है, सो दिस इज फोर्स F and this is another force F. If I go by bar, then first one will be positive. कौन सा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब आपस में डिस्कस करें, हाँ सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वाई ऊपर जा रहा है इसलिए, ठीक है, ऊपर जा रहा है, अगर कल को ये ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई दिस इज पॉजिटिव, घड़ियाल को कितने का एंटी क्लॉकवाइज, what is the direction for the hands of the clock? ये ऐसा है ना, ऐसा है, according to Cartesian sign convention this is considered as negative and opposite to this is considered as positive. Now even though this is a straight line vector, even though this is a straight line vector, is it going up, is it going anti-clockwise? Yeah. So this is going to be positive. तो ये क्या है, पॉजिटिव फोर्स है, और ये क्या है, नेगेटिव फोर्स है, why? क्लॉकवाइज है, ठीक है, नो डाउट, पक्का, ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज okay. Now try to understand when we are talking about the torque, okay, what is torque basically? It is the impact which is produced due to the couple of forces, ठीक है, so equal and opposite direction में आपने क्या किया कि clockwise anti clockwise force act किया है, ठीक है, the force is in same magnitude, ठीक है, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये कितना है, 20 है ना, 10 ही, ये 5 है तो ये कितना है, 5, ये 15 है तो ये कितना है, 15, ये 126 है तो ये कितना है, 126, ठीक है, ओके, सो दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड फ्रॉम द सेंटर द डायरेक्शन शुड आल्सो बी सेम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक फोर्स यहाँ पर इम्प्लाई किया है और दूसरा फोर्स आप यहाँ पर इम्प्लाई करें, डू यू थिंक द टॉर्क विल एक्ट? द टॉर्क विल नॉट एक्ट, है ना, उसको उतना हिंज ही नहीं मिलेगा, है ना, आपको नींद आ रही है, अरे श्योर, आई हैव कॉट यू लाइक ट्वाइस, यू शुड गो एंड यू नो वॉश योर फेस, सोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्लास में, चालू क्लास में सोते हुए, अरे श्योर, एक आप हो और एक और बच्चा यहाँ पर, आई एम गोइंग टू कैच यू, यहाँ पर देखो, सो इट विल नॉट गेट अ हिंज, ठीक है, सपोज मैं फोर्स यहाँ पर इम्प्लाई करता हूँ, स्टिल इट इज गोइंग टू गेट अ हिंज, सर हाँ, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ, मतलब आपका जो फिक्स पॉइंट है, एनसर्कलिंग पॉइंट जो है, वो अगर यहाँ पर होता तो है ना, है कि नहीं, अगर पता भी नहीं हो ना, हाई बोलने का, है, ठीक है,
So torque. अच्छा, do you know how generators work? जनरेटर कैसे वर्क करता है आपको पता है? नहीं, और जोर से नहीं वापरना। तसं तर तू सर्किट पण बसवत नाही ना, वायरीला तुला माहिती आहे ना सोलेनॉइड म्हणजे काय? ओके, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है तुम्हारा। हाँ हाँ आपको 10th स्टैंडर्ड में हुआ था, हाँ ये थोड़ा थोड़ा हुआ था सर, खुशी राइट। इम्पोर्टेंट है, आप ये लिख लो, आप ये भी लिख लो। उसके नीचे अपन टॉर्क का थोड़ा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दिस इज नेसेसरी। ठीक है, आप मुझे पता है आप फिर से 15 दिन में आप बोलने वाले टॉर्क पता है। अच्छा, हाउ डू यू रिप्रेजेंट टॉर्क? टाउ टाउ टाउ, हरियाणवी ताऊ नहीं, लाइक अज्जा ताऊ, ऐसा वो ताऊ नहीं, इट्स अ ग्रीक लेटर ताऊ। अच्छा, ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, ये मत करो, और नीचे टॉर्क लिखो, टॉर्क ब्रैकेट में लिखो टाउ, इट इज। अच्छा, चला, ओके, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, couple of force, it is the impact of couple of force, it is the impact of couple of force। अच्छा, when you write couple you cannot write forces, समझ रहे हो? couple मतलब दो, ये पहले से कंसीडर किया, so you cannot write couple of forces, ठीक है, that is bad, इंग्लिश भी बैड है, but it is even bad physics, okay, couple of force which are acting in equal and opposite directions, they are acting in equal and opposite directions with equal magnitude, see, in equal and opposite direction but with equal magnitude, तो इसमें सब कवर हो गया, ठीक है, दिस कवर सर्किट, तो डायरेक्शन कवर हो गया, मैग्नीट्यूड सब कवर हो गया। सर इक्वल डायरेक्शन, सर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, हाँ वही, एक काम करो, इक्वल इधर रिले ना, इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, वाचून घ्या एकदा, बरोबर लिहिलंय की नाही। You are writing plain concept, okay? So there is that, okay?
प्रिन्सिपल ऑफ मोटर, राइट डाउन नेक्स्ट वन, प्रिन्सिपल ऑफ मोटर, ठीक है. बरं पुन्हा एकदा विचारतो, ठीक आहे. सेकंड लास्ट बेंच, मोटर वापरली ना? What are the parts of it? Coil. क्या? Coil. Coil. Okay. I'm just going to write the parts, ठीक है? You will arrange them later on. Coil. और क्या होता है? हाँ? Magnets. Okay. Coils में magnets और सर्किट कौन सा? कॉइल हाँ मग ते सगळं सर्किट मध्येच येणार ना. इलेक्ट्रिकल मोटर आहे म्हटल्यावर तो सर्किट असणारच आहे. त्या सर्किट मध्ये काय काय पार्ट्स आहे हे आपण विचार करू. सो कॉइल आहे, मॅग्नेट, अजून काय आहे? ब्रश. बरं, ऍक्सल. हाँ तो मेकॅनिकल पार्ट म्हणतात. ओके, एक्सेल. पुढं वायर. ओके, कनेक्टिंग वायर. असं काय बिना वायरचं कुठून चालू करणार? ओके, व्हॉट इज हा? नाही स्विच. बरं, काही टाकायला लागेल. बरं, अजून बटन बिटन नका सांगू. हां, अजून काय? बॅटरी. बॅटरी, सेल. आपण सी इफ यू आर युजिंग द सोर्स, if we are using source directly, then you don't. I will write source, ठीक है, any form of source, it doesn't matter, ठीक है. इसमें सब आ गए. We need the source, right? Okay. और ये मोटर है, जनरेटर नहीं. ते इन्वर्टर वगैरह असतात ना. हाँ, लास्ट बेंच. एनीथिंग एल्स? ओके, इसको लगा तो लाइव झुंगा लगा. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉइल? जाने दो, कॉइल को गोली मारो. मैग्नेट वो छोड़ दो. चलो, ब्रश. पूरा रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू करते हैं. हम ब्रश यूज करते हैं. अच्छा, रोटेशनल मोशन किस चीज की होती है? कॉइल की रोटेशनल मोशन. ओके, नो मैन. चलो, कॉइल किसको अटैच होता है? कॉइल कहाँ पर होता है? मैग्नेट्स, बिटवीन द मैग्नेट्स. यू नो दीज थिंग्स, 10th में हुआ है. ओके, चलो, कनेक्टिंग वायर्स. मला एक सांगा, सोर्स हे कोणाला कनेक्टेड? मॅग्नेटला की ऍक्सेलला? ब्रशला. तो काय बोललो? हाँ, कोणाला आहे? ब्रशला आहे का? अरे सर, ब्रशला. लक्षात ठेवा, तुम्ही जनरेटर नाही बघत, तुम्ही मोटर बघताय. काय वाटतं? काय वाटतं? ब्रशची गरज, सोर्सची गरज नाही.
इथं लिहिलं नाही म्हणून कन्फ्युजन आहे का? मी 10 वेळा सांगतो आपण मोटर बघतोय यार, काय करताय? दिस इज फॉर मोटर. मोटर आपोआप चालत चालते नाही चालत. सोर्स लागणार आहे असं काय करतात, पण तुम्ही सोर्स देता कुणाला? प्रश्न हा आहे. ब्रशला सोर्स देताय आणि तो ब्रश कुणाला अटॅच आहे? मी पुन्हा एकदा विचारतोय नीट लगेच. सर ये हाथ सेमी सर्कुलर ये भी होता है, इसका नाम है क्या? ये सेमी सर्कुलर रिंग्स भी होते हैं, हाँ, उसका नाम जानती है? सेमी सर्कुलर नहीं, वो सर्कुलर रिंग्स होते हैं, अंदर गोल होते हैं, तो वो कॉइल्स होते हैं. नहीं कौन आर्मेचर बोल रहे हो? हाँ We're talking about armature. उसका नाम है Armature is basically what? It is the coil. This is the coil bounded against the axle. What is armature basically? See, there are two parts. There are basically two parts. पहला पार्ट क्या होता है? There is a stator. जो स्टेशनरी पार्ट होता है. Stator is a stationary part, and then there is a rotor. जो गोल घूम रहा है, right? Now what is basically last bite? What are you talking? आप मुझे बताओ ना. I gave you a chance ना. तो जब बोलने का चांस दिया है तब खुद से बोलना है, आपस में नहीं. आपस में क्या घुटर घुटर. So this is a. Now try to understand. The rotor consists of क्या? Coils. ठीक है? हम उसे आर्मेचर कॉइल्स. ठीक है? And then there is a axle, जिसके अगेंस्ट ये रोटर लगा हुआ है. So this is your axle basically. इसके ऊपर आपके क्या है? रोटर. और इसके आगे इसके ऊपर क्या रहता है? आपके कॉइल्स होते हैं. So this is what you are looking at. ये पता है, आपने देखा है कभी ऐसा कोई पार्ट? अगर आप किसी मैकेनिक की दुकान में जाओ तो वहाँ पर आपको ऐसा पार्ट देखने को मिलता है ना? तो ये देखा होगा. दिस इज बेसिकली द आर्मेचर और दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर वाइंडिंग. ये वाइंडिंग अंदर से होती है, तो अंदर से होते हुए वो बाहर आता है एंड इट इज बाउंड. इट इज कम्प्लीटली बाउंड. दिस इज लाइक दिस. ऐसा 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 ऐसा. तो ये आप अगर आगे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और साइड से देखोगे तो ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम मोटर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरेटर राइट. ठीक है. व्हाट हैपेंस इन अ मोटर इज दो मैग्नेट होते हैं. ठीक है. तो दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ. ठीक है. दिस कैन बी PMMC परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. तो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है. ठीक है. या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन द यूजर इटसेल्फ. ठीक है. ये यूजर पे भी डिपेंड करता है और आपका यूज क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ what we are using it against. Okay. Okay. So there is a north pole and there is a south pole. ठीक है. अच्छा. Now what is happening is हमने इसके बीच में कॉइल लगाया. अभी ये पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा. मैंने नॉर्थ और साउथ भी पूरा ड्रॉ नहीं किया. एक्चुअल में ये जो आप जो देख रहे हो ना, it looks completely different. It doesn't look like this. That is the first thing you should do.
ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखता है. If you are interested, then I will draw. If you are not interested, then we will let go. ये ड्रॉ करके सर्कुलर मैट्रिक्स. do you want to see ये एक्चुअल में कैसे दिखता है? It looks something like this. Have you seen this particular diagram somewhere before? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा. और वो वायर्स जो इसके थ्रू जा रहे हैं, these are the wires. एक्सल इसके अंदर से आता है. दिस इज द पार्ट फॉर द एक्सल. और रोटर, जो अभी कॉइल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले, ये वो कॉइल है. और स्टेटर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली. दिस इज नॉट हाउ स्टेटर लुक्स. द स्टेटर एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. ये आपने शायद कहीं देखा होगा. This is your north pole. This is your south. This is your north. This is your south. And this is not permanent magnet. This is electromagnet. How? How? Why? And all the coils are interconnected to each other. तो सोर्स कहाँ जा रहा है? सोर्स कहाँ जा रहा है? इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अगर ये स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो सोर्स कहाँ जा रहा है? इसको भी आ रहा है ना. वी आर गिविंग सोर्स टू दिस वन आल्सो. यहाँ पर भी सोर्स है. राइट. अच्छा, ये मोटर है ना? है मैं बता रहा हूँ, मोटर है. तो हम इसके अगेंस्ट भी सोर्स लगा रहे हैं. वाई? हाँ, तो रोटेट. अच्छा, इसके रोटेशन से क्या होगा फिर? द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू गेट कट. अच्छा, ये नॉर्थ से यहाँ पर जाएगा क्या? नहीं. कहाँ पर जाता है? परपेंडिकुलर.
अरे ब्लैक ही, अच्छा कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, इट वुड लाइक दिस, और ये इट इज बाउंड टू गो लाइक दिस। अगर एक ही मैग्नेट होता तो ज्यादा कट कर पाते हम, अगर एक मैग्नेट होता तो हम ज्यादा कट या फिर ज्यादा कटिंग नहीं कर पाते, लेकिन एक से ज्यादा मैग्नेट है कि नहीं तो हम ज्यादा कट कर पाते, दैट इज द वन थिंग, ठीक है। दूसरी चीज बोलते हैं, अगर हम खाली एक ही वायर लेते, ठीक है, जस्ट वन वायर, is it going to create a lot of energy? No. It's not going to create a lot of energy, it is not going to create a lot of effect, Power. है ना, not going to create a lot of power as such। लेकिन अभी यहाँ पर कितने वायर्स है बताओ तो जरा, this is one wire, ऐसा सोचो कि see it is a complete loop, इसका मतलब ये दो मिला के एक वायर बना है ना, तो आप तो टोटल नंबर ऑफ वायर गिनो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज वन एंटायर लूप। तो इतने लेवल पे कटिंग हो रही है एक ही टाइम पे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मोटर्स आर पावरफुल, है ना। अकेले अकेले क्या उखाड़, अकेले अकेले कुछ नहीं उखाड़। द ओनली रीजन द मोटर इज वेरी पावरफुल इज बिकॉज ऑफ दिस। और मैंने भी बहुत ही फ्री हैंड ड्रॉ किया है, आई इवन डिडंट ड्रॉ द इंटेंस एक्चुअल, है ना, पूरा जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, थोड़ा आपको रफली आइडिया आना चाहिए इसलिए मैंने ड्रॉ, ओके। अच्छा, रफली आइडिया है आपको, रफली आइडिया इज वेरी गुड आइडिया, ये देखिए क्या ओके। You have to draw a diagram like this, ठीक है। तो आप नीचे वाली ड्रॉ करोगे या ऊपर वाली ड्रॉ करोगे? ये सब छोड़ दो आपको, आपने ड्रॉ किया, हमने देख लिया, मजा आया, है ना। You want to draw this diagram? नहीं ना, अरे कुछ हाँ बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे। मैं काम करता हूँ, I will give you like 5 minutes, चलेगा? 5 मिनट दे रहा हूँ। मैंने कैसे ड्रॉ किया आपने देखा, ड्रॉ इन द सेम वे, इनको ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ इन द सेम, ठीक है। जब आप शुरुआत में ड्रॉ करोगे ये दोनों फेन ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डार्क कर देना, ओके। एंड दोज हु डोंट वांट टू ड्रॉ, इट्स ओके, उनको नहीं ड्रॉ करना है, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन गो टू द पेज नंबर 237, वहाँ पर फिगर 10.10 है, ठीक है। मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर 10.10, आप भी ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, वो 2 साल बाद तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्या? 2 साल बाद तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हाँ, 2 साल I still got it, इतनी पूरी डायग्राम नहीं हुई।
In this case, the stator. ये पूरा मोटर है, ये रोटर। Do you know what your trains है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे चलती है, पता है आपको? ये कोयले पे नहीं चलती, पता है ना? तो कोयले पे ही चलती जो है ना। तो इंडक्शन प्रिंसिपल पे हमारी ट्रेन चलती है और उसमें जो मोटर लगाया हुआ है दैट इज एन इंडक्शन मोटर, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडक्शन मोटर है पूरे भारत में कहीं भी अगर ये मोटर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए कहाँ लेके आते हैं? पूरे भारत में खाली एक ही जगह है जहाँ पर लेके आते हैं, कौन सी वो जगह? पता है क्या? नासिक। कहीं भी खराब हो जाए लाते नासिक में ही। देयर इज अ प्रॉपर शेड टूल सब वहाँ पर है लगाया हुआ, एंड इंजीनियर्स आर देयर एंड दे टेक केयर ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा है। अभी मेरे ख्याल से शायद पिछले साल से या उसके पहले से ऐसी मतलब बात हो रही थी कि ये जो नासिक में है ना इसको यहाँ से हटा देंगे और कहीं सौराष्ट्र में वगैरह जाकर बिठा देंगे, है ना। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू लेटर ऑन, क्या हुआ उसके साथ। ओके, डायग्राम रहने तो फिर चलेगा। विल टेक द डेरिवेशन टुमारो। सी
मैंने आपको पहले ही बताया कि इफ़ यू नो द डायग्राम यू विल नो द कंसेप्ट, इफ़ यू नो द कंसेप्ट डेरिवेशन सच में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट यू विल नेवर नो द डेरिवेशन, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कल क्या करेंगे, कल वी विल डू द डेरिवेशन, और मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, वी विल टेल बाय यूअर्स क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, विल स्टॉप टुडे एंड विल कंटिन्यू टुमारो, चलेगा।